Hello, students. Today we are going to start the first chapter of biology section in science for the class ninth, improvement in food resources. Okay. In this section, we discuss about the sustainable agriculture and organic farming, production of crops, improvement in crop yield, crop variety improvements, crop production management, crop protection management also, animal husbandry, cattle farming, poultry farming, fish farming or fisheries, beekeeping and apiculture. So let we take one by one the topics. When we start about the plants, we all know that plants are autotrophs and the animals are heterotrophs. It means plants are those living being which prepares their own food through a process of photosynthesis, while the animals are dependent on the plants for their food, so that are called as heterotrophs. The two special fields that deal with it are agriculture field are mainly animal husbandry and agriculture. So what is the agriculture? Let me discuss about. Agriculture refers to the applied science that deals with the mass production of plants which are useful for human beings. एग्रीकल्चर इस बात को रेफ़र करता है कि जिसमें एक ऐसी अप्लाइड साइंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें से प्लांट का मास प्रोडक्शन हो, यानी कि प्लांट को बहुत मात्रा में उगाया जा सके जिससे कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी यूज़फुल हो सके. ओके, हम सभी को पता है कि टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन वी नीड टू प्रोड्यूस अराउंड 241 million tons of grains annually. This can only be done by improving the crop yields and production ऑफ लाइव स्टॉक. हमारे देश में 2020 तक ये टारगेट रखा गया है कि 1.2 बिलियन लगभग लोगों के लिए इतना फूड प्रोडक्शन कर लेना है. और फूड प्रोडक्शन सो टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन वी नीड टू प्रोड्यूस अराउंड 241 million tons of grains annually. And this can only be done by improving the crop yields and production of livestock. It means 1.2 बिलियन अभी हमारे देश की पॉपुलेशन थी जब ये बुक लिखी गई है, और लगभग 2020 तक 1.3 बिलियन ये पॉपुलेशन पहुंच जाएगी. और तब तक फूड रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी उस लार्ज पॉपुलेशन के लिए, और उस लार्ज पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एनुअल क्रॉप ग्रोथ भी बढ़ानी पड़ेगी. और उसके लिए जो है हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, लाइव स्टॉक्स को बढ़ाना ये भी बहुत ज़रूरी है. सो फॉर दिस, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक एंड द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वी ऑल्सो नीड द न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्निक्स विच आर इंट्रोड्यूस इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन. It means green revolution is associated with the growth of more production of food grains, that is called as green revolution. And when we discuss about the production or high yield of milk production, that is called as white revolution. And when we discuss about the increased production of oil, that is called as yellow revolution. And when we discuss about the increased production of fish, that is called as blue revolution. And when we discuss about the increased production of pulses also, that is called as golden revolution. So now we discuss about what is the main sustainable agriculture. So here let me discuss the definition of sustainable agriculture. The successful management of agricultural resources to satisfy the changing human needs while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving the natural resources is called sustainable agriculture. यानी कि sustainable agriculture क्या हुआ बच्चों? एक ऐसा सक्सेसफुल मैनेजमेंट करना जिसमें जितने भी एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, इन सब का इस तरीके से यूज़ करना जैसे कि सारे ह्यूमन बीइंग की जितनी भी नीड्स हैं उनमें जो भी चेंजेस किए जाने हैं उसको सेटिस्फाई किया जा सके, और साथ ही साथ में हम अपने इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रख सकें, और इन्वायरमेंट में भी क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें, मेंटेन कर सकें, और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व भी कर सकें. मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करते हुए जो भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. अब हम ऐसा क्यों करें, इसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर?
So first, there are here 6 advantages mainly the sustainable agriculture. फर्स्ट, इट अचीव द कॉम्बिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल साइकिल. इससे हमें बायोलॉजिकल साइकिल में हेल्प मिलेगी, इसकी कॉम्बिनेशन में हेल्प मिलेगी. बायोलॉजिकल साइकिल का मतलब ये हुआ कि जैसे एक क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद दूसरी क्रॉप का प्रोडक्शन करना. एक क्रॉप के प्रोडक्शन से एक एरिया के या एक फील्ड की जनरेशन को फ़ायदा हो सकता है, और उसके बाद में दूसरे क्रॉप प्रोडक्शन से दूसरी एरिया को फ़ायदा हो सकता है. इसके बाद हम एक दूसरे की क्रॉप्स को चेंज करके एक दूसरे की पॉपुलेशन को दे सकते हैं. इससे जो है बायोलॉजिकल साइकिल भी मेंटेन होती है. दूसरी बात आई, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आप सस्टेनेबल रखेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बरकरार रहती है, और उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है इसकी रिन्यूएबिलिटी भी मिलती है, प्रोडक्शन भी मिलता है. यानी कि सॉइल की उपजाऊपन जो है, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है, सुरक्षित रहता है, और फिर रिन्यू भी हो जाता है. थर्ड, इट मैनेजेस द यूजेस ऑफ फार्म रिसोर्सेज और टू द ऑप्टिमम. इसकी सहायता से हम फार्म का या अपने खेतों का जो है यूज़ अधिकतम तरीके से कर सकते हैं. फिर इट मिनिमाइजेज द पॉल्यूशन एंड द यूज़ ऑफ न्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इससे हम जो है पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज का हम उपयोग जो है, ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से रिजनरेट नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, वो एक बार में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उनका भी यूज़ ढंग से कर सकते हैं. इट हेल्प्स टू गेट एन एडिक्वेट एंड रिलायबल इनकम. इस बढ़ते हुए एग्रीकल्चर फार्मिंग से, जिसमें हाईएस्ट टेक्नोलॉजीज एंड साइंस जुड़ी है, ऐसी हाईएस्ट वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके, मैन्योर का यूज़ करके हम जो अच्छी तरीके से क्रॉप यील्डिंग करेंगे, उससे हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड के थ्रू एडिक्वेट और रिलायबल इनकम भी मिलेगी लोगों को. इट प्रोवाइड ऑल्सो न्यू एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ द कंट्री. इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे लोगों को, हमारे देश के जो किसान हैं, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिससे उनकी कंडीशन और मच बेटर बनेगी. अब आता है इसके बाद कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे. ऑर्गेनिक फार्मिंग, द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विद द मैक्सिमम यूज़ ऑफ मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स with healthy cropping system and no or minimal use of chemicals as fertilizers, herbicides and pesticides, that is called as organic farming. यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू क्या करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं फार्मिंग की और उससे हाई यील्ड प्रोडक्शन करते हैं फार्मिंग के थ्रू क्रॉप्स का, उसमें हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं मैन्योर्स का, बायो पेस्टिसाइड्स का, बायो फर्टिलाइज़र का, और केमिकल्स का यूज़ नहीं करते. इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं. जैसे कि इसमें हम लोग बहुत सारे एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनका यूज़ करते हैं. ये हमारी एक्चुअली क्या होता है, जैसे दालों की जड़ें होती हैं, उनमें जाते हैं, उनके नोड्यूल्स में रहते हैं, और उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्राइट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर जो उस पौधे की रूट में ये रहते हैं, तो उससे उस पौधे को नाइट्रोजन मिलती है, और उस नाइट्रोजन से उस पौधे की जल्दी बढ़त हो जाती है. कई सारे बायोपेस्टिसाइड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे बायोपेस्टिसाइड्स में हम लोग नीम का पेड़ यूज़ करते हैं, नीम की पत्तियाँ यूज़ करते हैं, जिसको अजाडायरेक्टिचिन बोलते हैं. अजाडायरेक्टिचिन एक टाइप का अल्कोलॉइड है जो कि नीम से मिलता है. ऐसे ही बहुत सारे अल्कोलॉइड में, जैसे पायरिथियम है, पायरिथियम का यूज़ जो है वो क्राइसेंथेमम्स पौधे से मिलता है. इसका यूज़ जो है कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है. थ्यूरीसाइड है, थ्यूरीसाइड का यूज़ जो है वो बैक्टीरियम बैसिलस है, थ्यूरीसिजम, उससे मिलता है, और इसका यूज़ भी ग्रेन्स के स्टोरेज में होता है. ये सारे जितने भी आपके पायरिथम है, थ्यूरीसाइड है, अजाडायरेक्टिचिन है, इसका लोग यूज़ करते हैं ताकि जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करके ढंग से रखा जा सके. आप लोगों के गाँव घर में भी देखा होगा आप लोगों ने कि लोग नीम की गोलियाँ रखते हैं और नीम की पत्तियाँ रखते हैं ताकि अनाज में कीड़े ना लगें. वही सेम यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है. ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग से बच्चों हम लोग को बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं. क्या क्या फ़ायदे? जैसे कि एक तो जो क्रॉप्स का कंजप्शन है वो सेफ़ रहेगा, और दीज ऑर्गेनिक क्रॉप्स आर सेफ टू कंज्यूम एज दे कंटेन नो और मिनिमल ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड. इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, इसलिए उसको कंज्यूम करने में फ़ायदा है. ये जो सॉइल है उसका हेल्दी मेंटेनेंस भी करता है. वाटर लॉगिंग कैपेसिटी जो है ये कम करता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है. फार्म वेस्ट को रिसाइकिल करता है, और उसके बाद में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करता है. साथ ही में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो क्रॉप पैटर्न है उस पर भी फ़र्क पड़ता है,
और जो भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, वीड्स हैं, इनको भी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब बच्चों इसके बाद आता है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप की बात करें तो जनरल क्लासिफिकेशन जो किया गया है क्रॉप्स का, उसमें 3 टाइप की क्रॉप्स बताई गई हैं। जनरल क्रॉप्स हैं उसमें फील्ड क्रॉप्स है। फील्ड क्रॉप्स में जैसे कि आप लोग देखा होगा कि लोग अनाज उगाते हैं, गेहूँ, चावल, धान, पल्सेस उगाते हैं, ऑयल सीड, लिंसीड, ये सब अलसी वगैरह उगाते हैं। प्लांटेशन क्रॉपिंग की बात करें तो प्लांट्स में जैसे आपने देखा होगा टी, कॉफ़ी के बागान लगाए जाते हैं। कॉफ़ी है, टी है, रबर है, कोकोआ है। गार्डन क्रॉप्स में जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जैसे कि जो सुंदर लगने वाले पौधे जो सजावट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग कैक्टस लगाते हैं घरों में। ऑर्नामेंटल प्लांट है, रबर प्लांट है, क्रोटन के पौधे हैं, ये सब ऑर्नामेंटल प्लांट्स गार्डन क्रॉप्स में आते हैं। इनकी भी खेती की जाती है, फूलों की भी खेती की जाती है, ये सब कमर्शियल क्रॉप्स में भी आता है। अब आता है दूसरा टाइप का कमर्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। कमर्शियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब हुआ जिससे कि हमें पैसे डायरेक्टली मिलते हैं, जैसे कि जो कि हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए भी फ़ायदेमंद है। जैसे फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप में जैसे वीट है, ग्रेन है, मेज़ है, ऑयल सीड्स है, स्पाइसेस है, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, पल्सेस है, फ्रूट्स है। फोडर क्रॉप्स मतलब जैसे चारा बनता है, जैसे ओट्स है, सोरगम है, सोयाबीन है, बारसम है, सुदान ग्रास है। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब है जो आर्थिक पौधे होते हैं, यानी कि जिनसे जो कैश क्रॉप्स के रूप में काम आती हैं, जिसको तुरंत पेश करके पैसा कमाया जा सकता है। जैसे शुगर केन है, गन्ना सीजन में उगता है और जब उगता है उसके बाद में उसको बेचा जाता है, तो मिलों में जा कर के गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इससे हमें ये कैश क्रॉप है। कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, टोबैको है, ये सब कमर्शियल क्रॉपिंग में आता है। अब लेट मी डिस्कस ऑन नेक्स्ट व्हाट आर द food crops. So we know that food crops are the crops which are raised to meet the food requirements of human beings. And in this section we include the cereals, pulses, vegetables, seeds, oil seeds, etc. Now in fodder crops are those crops which are grown to feed the livestock such as cattle, यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए जो हम लोग चारे की व्यवस्था करते हैं, उसमें सोरगम, सुडान ग्रास, बारसिम सीड, ओट का यूज है। कमर्शियल क्रॉप्स की हम बात करें, वो क्रॉप जिससे कि हमें अभी मैंने बोला इनकम का पर्पस पूरा होता है, दैट आर ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम, जैसे शुगर केन, जूट है, कॉटन, टोबैको एटसेट्रा। अब आती है सीजनल क्रॉप्स की बात। सीजनल क्लास नाउ वी कम ऑन द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनली क्रॉप्स: रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप इज दैट क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एंड आर हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। मतलब विंटर सीजन में ये रबी क्रॉप ग्रो की जाती है। इसमें अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसको उगा दिया जाता है और उसके बाद में मार्च और अप्रैल में इसको कटाई की जाती है। मेजर क्रॉप्स इसमें आती है शुगर केन, मस्टर्ड और लिंसीड। फिर आता है खरीफ क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द सितंबर अक्टूबर, यानी कि जून और जुलाई में इसको उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। मेजर क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप में आएंगी वो आएंगी आपकी पैडी है, धान, सोयाबीन, मेज़, ब्लैक ग्राम, कॉटन, अरहर एंड मिलेट्स। जायद क्रॉप्स आर बेसिकली ग्रोन इन द समर सीजन एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन अगस्त एंड सितंबर। समर सीजन का मतलब हुआ कि अप्रैल और जून के महीने में इसको ग्रो किया जाता है और उसके बाद अप्रैल टू जून के ग्रो करने के बाद में इसको सितंबर अक्टूबर में अगस्त सितंबर तक काट लिया जाता है। इसमें मेनली जो है कुकुम्बर है, मेलन्स है, ये सारी क्रॉप्स आती हैं। अब आता है कि जो ये क्रॉप है उसकी ग्रोथ के लिए मेनली क्या है कि कुछ प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्रॉपर ग्रोथ के लिए आपको रिक्वायर्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। व्हाट इज द फोटो पीरियड? द लेंथ ऑफ द डे ड्यूरिंग विच सनलाइट इज अवेलेबल टू द प्लांट। पूरे पीरियड में, यानी कि वो समय जिस समय की प्लांट को कितनी समय तक, पूरे दिन में कितने समय तक उसको सनलाइट मिलती है, उसको बोलते हैं फोटो पीरियड इज द लेंथ ऑफ द सनशाइन टू द प्लांट ड्यूरिंग द होल डे, दैट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। एंड फोटो पीरियडिज्म, दिस इज अ फिनोमिना, ये एक टाइप का प्रोसेस है इन विच द प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू रिलेटिव लेंथ्स ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है ये एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो पूरे दिन में जो भी
या पूरा दिन रात, या कह सकते हैं कि पूरे दिन में जो लाइट पड़ती है पौधे के ऊपर, और जो डार्क में यानी कि जो अंधेरे में पौधा रहता है उसके प्रति उसका कैसा रिस्पॉन्स है पौधे का, उसको बोलेंगे फोटो पीरियडिज्म। और इसी से या फोटो पीरियडिक जो फोटो पीरियडिसिटी है ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है बहुत सारे वेरियस फिजिकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, जैसे कि फ्लावरिंग कैसी हो पौधे में, लीफ फॉल, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स, ये सब इस पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं जैसे कि जिसमें फोटो पीरियड लेंदी होता है, लॉन्ग फोटो पीरियड होता है, जैसे पॉपी है, स्पिनैच है। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं जैसे क्राइसेंथम, इनको कम समय के लिए धूप चाहिए होती है। और डे न्यूट्रल प्लांट वो होते हैं जिनके ऊपर धूप का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, अगर धूप है तो भी ठीक, नहीं है तो भी। इसमें आता है स्नैप और ड्रैगन। तो इस टाइप से अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ फोटो पीरियड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट इज द डे लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट पॉपी एंड स्पिनच, जिसको बहुत लंबे समय तक पानी की धूप की ज़रूरत है। शॉर्ट डे प्लांट मतलब जिसको दोज प्लांट्स विच आर रिक्वायर्ड द सनशाइन फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस और शॉर्टर टाइम, इसमें आएगा क्राइसेंथम। एंड देन डे न्यूट्रल प्लांट, दोज प्लांट्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द सनशाइन ड्यूरिंग द होल डे, दीज आर द कॉल्ड एज स्नैपड्रैगन जैसे। अब आता है बच्चों इसके बाद कि हम जो क्रॉप की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, क्रॉप इम्प्रूवमेंट की हम अगर बात करें तो क्रॉप की इम्प्रूवमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें आप जैसे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मतलब है आप बेस्ट सीड चूज़ करें प्लांटेशन के लिए। दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप प्लांट्स वही उनको नर्चर करें, उसको कैसे जो भी क्रॉपिंग प्लांट्स हैं उनको किस तरीके से उनको पोषित करें, उनको किस तरीके से ग्रोथ कराएं, उनमें कब पानी देना है, कब खाद देनी है, ये सब का ध्यान रखें। फिर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप की प्रोडक्शन भी करें, जो ग्रोइंग क्रॉप्स जो बढ़ रही है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको समय पर काटना, ये सारा प्रोसेस जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोसेस या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आता है। तो एक आपके पास टर्म है कि ऑल दीज एक्टिविटीज़, यानी कि गुड क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, गुड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड गुड क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दीज 3 ऑल ऑफ फिनोमिना आर इंक्लूड or performed by the farmers to produce a good crop are called as agricultural practices। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम बात करेंगे कि जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को किस तरीके से करना चाहिए उसको। इसके लिए हम एक प्रॉपर एक फ्लो चार्ट यहाँ बच्चों बना हुआ है। इसमें कैसे देखें, पहले तो किसान को प्रिपरेशन ऑफ सॉयल करना चाहिए। सॉयल की प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, हल चलाते हैं, खेत जोतते हैं। फिर उसमें आता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। गुड सीड, जो गुड हाई येल्डिंग वैरायटी सीड है जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है क्रॉप का, उसको सिलेक्ट करना चाहिए और उसको सो करना चाहिए। उसके बाद आता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही जैसे प्लोइंग करी, खेत में हल चलाया, लेवलिंग की, मिट्टी को बराबर किया, फिर मैन्योरिंग करते हैं, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं। अब बीज को बो दिया, बीज को बोने के बाद में तीसरा था इरिगेशन, सिंचाई करेंगे। फिर चौथा करेंगे उसका प्रोडक्शन करेंगे वीड्स वगैरह से, तो वीडिसाइड्स वगैरह का छिड़काव भी करते हैं वहाँ। फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, खेत में फसल उग गई है तो उसे काटना भी है तो हार्वेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में इसको प्रोटेक्टेड रूप में सही फॉर्म में घर पे लाते हैं, तो इसको स्टोरेज भी बोलते हैं, इसको कहते हैं स्टोरेज। सो इन द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मिंग वी इंक्लूड द मेनली 6 प्रोसेसेस: प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, irrigation, production from weeds, फिर harvesting and storage. And in the preparation of soil, it contains the 3 processes: plowing, leveling, manuring. Okay, manuring means add manures and fertilizer.